वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है वैभव बिंद्रा ने और वीडियो का टाइटल है भोपाल reclaim 37 acres of wasteland by cleaning a legacy waste, the cleanest cities of India, episode 9। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। डाउन टू अर्थ प्रेजेंट। ये तो मुझे ओला का याद आ रहा है। कौन सा? वो जय पहाड़ बना हुआ है। Almost every city has one of these. Ugly piles of garbage that sometimes look like mountains of waste. They are eyesores, smell bad, and most importantly, are major environmental hazards. These unlined and unscientifically designed landfills, typically referred to as dump sites, are the greatest challenge in the solid waste management of India. According to government data, there are more than 3,000 dump sites in India that need to be reclaimed or closed permanently. And one of the best models to remediate these dump sites can be found in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. Bhopal has reclaimed over 7.5 lakh tons of legacy waste in 37 acres of land, which was once a dump site for the entire city. So, how did Bhopal do it? Let's find out in this episode of The Cleanest Cities of India. कितना अच्छा है ना। ये ऐसे दिल्ली टाइप Bhopal लग is रहा था। known as the city of lakes. It's a city steeped in heritage, a city that is a delight for food lovers. But what is little known is that Bhopal is also a city with a robust waste management system. भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। भोपाल में जो नेचुरल स्पेसेस है, जैसे ग्रीनरी है या तालाब है, अन्य स्पेसेस है, हमेशा लोग माने स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे, इसीलिए ये सब इतने अच्छे मेंटेन्ड है, मैनेज्ड है। But this city, which generates around 800 tons of municipal solid waste every day, was not clean like it is today. Till 2017, Bhopal did not segregate its waste. This unsegregated waste used to end up at a 37-acre dump site at a place called Bhanpur Khanti. This dump site has been in existence for more than 30 years and has accumulated over 7.5 lakh tons of legacy waste. As the dump site became a major environmental hazard for the people of Bhopal, the Bhopal Municipal Corporation decided to take action. भोपाल में भानपुर एक प्लेस थी जहाँ पर 30 साल के ऊपर से समय से कचरा उधर डंप किया जाता था। मिक्स्ड वेस्ट ओपन ग्राउंड पर डंप करने से उधर काफ़ी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था और साथ में उधर के जो आसपास के जो रहवासी थे उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मिनेस भी था। और जो लोग ट्रेन से दिल्ली तरफ से भोपाल आते थे उन सब लोगों के लिए भोपाल आया इसलिए ऐसा पहचानते थे कि जब भानपुर से फॉल स्मेल होती थी उससे वो पहचान पाते थे कि भोपाल मल आ गया है। हम लोगों के लिए ये 2018 में एक बहुत बड़ा चुनौती थी, चैलेंज था कि कैसा हम इसको साइंटिफिक रूप से ट्रीट करके प्रॉपर मन उसको कैपिंग करेंगे। In 2018, BMC decided that a public-private partnership was the way to resolve the dump site problem in Bhanpur Khanti. Saurashtra Enviro Projects Private Limited, a company involved in municipal solid waste management processing, was selected as the concessionaire to carry out bioremediation. But to remediate a dump site almost 27 times that of a football field containing decades-old waste was not an easy task. नगर निगम इसको टेंडर फ्लोट किया था। ये एरिया पहले जो 37 एकड़ में फैला हुआ एरिया है, हम लोग जब इनिशियली इधर आए थे तब ये ओवरऑल एरिया में 8 मीटर 9 मीटर एवरेज हाइट में कचरा डंपिंग था। तो उसमें हम लोगों का पहला प्लानिंग ये था कि इसमें से कुछ पोर्शन हम लोग बायो माइनिंग प्रोसेस में प्रोसेसिंग करें, कुछ पोर्शन हम लोग डंप में ट्रांसफ़र करके उसको साइंटिफिकली क्लोज करें। Saurashtra began their work by pre-planning every detail of the project. BMC and the concessionaire then chose a unique hybrid model of biomining and biocapping to carry out the remediation process. Out of the 37 acres of land,
21 acres was to be recovered through biomining and the rest 16 acres was decided to be capped. तो इसमें बायो माइनिंग में जो है हम लोग पहले तो कचरे को हिप बनाते थे, उसमें कल्चर ऐड करते थे, फिर उसको 27 डेज तक हम लोग अपना फ्लोर में रखते थे, उसके बाद उसको प्रोसेस करते थे, थ्रू ट्रोमेल सेग्रीगेट करते थे डिफरेंट स्टेज में। हम लोग 3 ट्रोमेल लगाए थे, 75, उसके बाद 50 और 8 mm का ट्रोमेल लगाया। उसमें कंपोस्ट उसमें इनर्ट निकलता था, RDF निकलता था और फाइनली कंपोस्ट निकलता था। RDF हम लोग वेस्ट टू एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते थे, इनर्ट हम लोग अपना जो एग्जिस्टिंग डंप है उधर ट्रांसफ़र करते थे, और जो खाद निकलता था वो हम लोग कुछ बैक फिलिंग के लिए यूज़ करते थे, कुछ अदर हम लोगों का जो कल्टीवेटर है वो भी लेके जाते थे, अपने हिसाब से यूज़ करते थे। A total of 1.8 lakh tons of waste was recovered using biomining. The next step was to deal with the rest of the waste by using the method of biocapping. After digging the land, a layer of high-density polythene liner was placed, over which a trapezoidal waste structure is made as part of the capping process. The waste structure is covered with geomembrane, soil, and is planted with grass to complete the process. The treatment of leachate and the gases that emerge from the dump site is also important during the capping process. तो हम लोग उसका जो लीचेट जनरेट होता है, जो कचरा होता है, कचरे का एक जूस निकलता है उसका सेल्फ वेट से, तो वो लीचेट बोलते हैं उसको। तो वो लीचेट जो जनरेट होता है, वो लीचेट को हम लोग पेरिफेरियल एक पाइपलाइन इंस्टॉल करके उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको हम लोग LTP में ट्रीटमेंट करते हैं, लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट में। And today, after 3 years of back-breaking work, this is how Bhanpur Khanti looks. The 37 acre of land in Bhanpur has been reclaimed, and 16 acres of this has been developed into a green area. The BMC is now planning to commercially use this reclaimed land. सौराष्ट्र कंपनी के माध्यम से नगर निगम ने 52 करोड़ रुपए खर्च करके उसका रेमेडिएशन किया है, जिसमें हमको वापस 21 एकड़ लैंड मिली है और 16 एकड़ में हमने पार्क डेवलप किया है। उस टोटल 21 एकड़ लैंड की आज जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसके हिसाब से 380 करोड़ रुपए होता है। तो इस रूप में नगर निगम को जो हमारी 37 एकड़ लैंड उस डंप साइट पे थी, उसमें से हमने पार्क बनाया, जो एक अच्छा हरियाली का उधर का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, वहाँ का पानी का जो पोल्यूशन तो वो समाप्त हो गया, और उस रूप में नगर निगम को भी एक 380 करोड़ रुपए की लाभ भी मिला। But for Bhopal, getting rid of this eyesore was just the beginning. Today, Bhopal employs source segregation practices including door-to-door segregation. They also use GPS-based tracking technologies to ensure that waste gets collected, segregated and processed every step. Bhopal also has a scientific landfill in its outskirts at a place called Adampur. It has a central waste management system that mostly deals with unsegregated waste collected from the city's floating population, as well as some of the legacy waste. Bhopal has set a model for the rest of the country. It has shown that legacy waste in dump yards can be effectively remediated using appropriate technology solutions. It could become a model for the remediation of the 3,000 odd dump sites in cities across the country. हमारे शहरों की बात की जाए तो सबसे बड़े मसलों में से एक मसला जो है ना, वो कचरे को जो है वो टिकाने लगाने का भी है, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि जो आप राह चलते जो है आपको बहुत ज़्यादा कचरा देखने को मिलता है। मैं कहूँगी कि जो टेक्निक्स इस वीडियो में बताई गई, बायो माइनिंग के बारे में तो हम लोगों को पहले से पता था, लेकिन बायो कैपिंग के बारे में मुझे आइडिया नहीं था जिस तरीके से डिटेल्स में बताया गया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मे बी इंदौर या कोई और सिटी
जिसका हम लोगों ने पहले भी वीडियो देखा था और उसमें भी दिखाया गया कि किस तरीके से जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके तो उनसे जो चीजें हैं वो बनाई जाती है। मेरा ख्याल है इंदौर में ही हमने ये चीज जो है पहले देखी थी। और हाँ, इंडिया और ये भी वैसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में ये भी शहर और भोपाल भी जो है वो भी मध्य प्रदेश में। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश इस हिसाब से नंबर ले गया सफाई सुथराई के हिसाब से। भोपाल से हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी हैं और फाइनली आज हम लोगों ने भोपाल भी देख लिया। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैं बात करूँ तो ये नो डाउट है, एक तो बहुत अच्छा वो प्रोसेस भी है कि क्या नाम लेते हैं आप चीज़ों को किस तरह कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर मोस्टली बात करूँ ना तो वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक शहर की पहचान बन जाती हैं। अब जैसे जो है वीडियो में बताया गया कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि जैसे ही लोग भोपाल में एंटर होते थे उन्हें दूर तक इसी स्मेल आना शुरू हो जाती थी, तो लोगों को पता चल जाता भोपाल आ गया है। तो ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। लाहौर का याद आ गया ना इसलिए। हाँ, क्योंकि हम भी जब रिंग रोड से एयरपोर्ट वाली साइड पर जाते हैं ना तो साल पुरानी बात है, मेरा ख्याल हम लोगों ने पहले भी शेयर की हुई है ना, क्या यही वाली जो जितना भी डंप है वो। हाँ, ये काफी देर पहले, मैं 2 साल पहले शेयर की थी। लाहौर में पहाड़ आ गया। हाँ, लाहौर में पहाड़ आ गया, मैं हैरान हो गया तभी लाहौर में पहाड़ कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद जब आप गुजरांवाला भी जाते हैं तो रास्ते में आपको जो है कचरे का पहाड़ जो है वो नजर आता है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम दुनिया में भी देखें तो दुनिया में जो है कचरे को बहुत तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे इस वीडियो में बताया गया कि एनर्जी जो है जनरेशन के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, रोड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी फर्स्ट प्लास्टिक रोड जो है वो बनाया गया अभी पिछले दिनों में। लेकिन मैं यहाँ पे जो है मलेशिया की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मलेशिया का जो है वो देख रहा था कि वो जिस तरह कचरे को जो है उससे बिजली बनाते हैं, फिर वो कचरा जो जिस तरह समंदर में डंप करते हैं और उसे यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा ट्रीट करके। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। वैसे मलेशिया अगर किसी और के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो मलेशिया को चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे, खासतौर पर हमारे जैसे देशों को जहाँ पर कचरे की भरमार पड़ी हुई है, यानी कि जगह जगह देखें। क्योंकि हमारे भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट अगर अपना काम करती भी है ना तो हम लोग खुद भी जो है ना बजाते खुद बहुत ज्यादा गंदे हैं। मुझे ऐसा लगता है लोग ज्यादा गंदे हैं। ऑनेस्टली बताऊं, मैं यहाँ पे लोगों को देखती हूँ ना, लोगों का ज्यादातर जो एक तरीका कार रहता है, चीजें खाली रैपर्स फेंक दिए, जिधर मर्जी पान की पिचकारी मार दी, आए हाय, वो तो मुझे बहुत ही गंदी लगती है। और फिर अगर आपके जो डस्टबिन बाहर जो ग्रीन बेल्ट यहाँ पर बोलते हैं उसको, वो जो है वो एक्स्ट्रा गंदे आपको मिलेंगे, उसके बाहर कचरा नजर आ रहा है। और गवर्नमेंट की मैं अगर बात करूँ तो उनकी गलती ये बनती है कि वो टाइम से उसको खाली नहीं करते, या फिर उसकी सफाई जो बाहर से है वो उस तरीके से उसको साफ नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो दोनों साइड पर काफी ज्यादा आपको कमियां नजर आती हैं। बट लोग इसलिए मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नजर आते हैं कि एटलीस्ट आप कुछ और नहीं तो अपने अपने घर के सामने से तो सफाई कर सकते हैं ना। आप इस तरीके से आप खुद से इनिशिएटिव लें। यार असल में यहाँ पे हमारे सबसे बड़ा मसला यही है कि हम जो है ना वो कहते हैं कि अपना घर साफ रहे, दूसरों का घर गंदा भी हो जाएगा ना तो खैर है। तो उसी जो है ना चक्कर में हम पूरा जो है ना अपना इर्द गिर्द का एरिया जो है वो सारा जो है वो गंदा करके बैठ जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक ग्रीन बेल्ट की बात है, हमने तो से ग्रीन बेल्ट की बजाय डर्ट बेल्ट बनाया होता है जितना वहाँ पे कचरा होता है। नो डाउट गवर्नमेंट की भी वहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर उन लोगों की जो पावर में है, यानी कि उस खास एक इदारे में है कि उसे वक्त पर साफ करें। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ की बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने प्रोसेस कुछ इस तरह का भी देखा है कि भाई यहाँ पर वो जो कचरा उठाने भी आते हैं ना, वो भी इस तरह के अजीब लोग होते हैं ना कि मेन रोड से जब कचरा उठा रहे होते हैं ना, पीछे गिरा तो रहे होते हैं लेकिन साथ साथ जो है ना पीछे ट्रैफिक जाम करवा देते हैं। ठीक है ना, ये चीज मैंने नोट की है। फिर अभी रिसेंटली जब हमारी बहन का ऑपरेट हुआ था तो वहां पर जो वो पड़ा हुआ था, जो डस्ट यानी कि कचरा फेंकने वाला जो बॉक्स पड़ा हुआ था, वो सड़क के बिल्कुल उस कॉर्नर पे पड़ा हुआ था। मैंने नहीं देखा, आपको दिखाया भी था, मुझे याद नहीं। हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो है, कहाँ पर मुझे अभी अच्छा आपको नहीं याद? हालांकि होना वो रोड के इस साइड पे चाहिए था लेकिन वो बिल्कुल इस साइड पे था। मतलब क्या सेंटर में पड़ा हुआ था वो जहाँ पर राउंड अबाउट है? हाँ। अच्छा, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता अब वहाँ पे तो लोग कैच कैच ही खेलेंगे, फुटबॉल की तरह गया कि नहीं गया। मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगी कि अभी कुछ अर्से से जितना प्लास्टिक को लेकर लोगों में एक अवेयरनेस आई है कि हमारे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प करेंगी उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहुंचा चुके हैं।
बट फिर अगेन काम करना बनता है, जिन लोगों ने काम करना है बिल्कुल। वो लोग ही कामयाब होते हैं। अभी वैसे मैं इसको देखने के बाद देख रही थी कि पाकिस्तान में भी कहीं पर ये चीजें स्टार्ट हुई हैं कि नहीं, बायो माइनिंग स्पेशली अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बायो कैपिंग तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बायो माइनिंग नहीं तो बायो कैपिंग कहाँ से हो रही है। देखें अभी हम ढेर लगा रहे हैं, जब ज्यादा लग जाएंगे फिर हम सोचेंगे ओहो शहर बड़े गंदे हो गए हैं, चले अब इसके लिए बजट एलोकेट करते हैं ताकि सफाइयां की जा सके। बट ये कि एक इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तानी, उनको मैं फॉलो करती हूँ और उनकी मैंने स्टोरी पर देखा था कि जो डंप सेग्रीगेट जिस तरीके से करके, तो मतलब वो उसमें बता रहे थे कि काफी सारी जो है आप इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं, कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उस स्टोरी को जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि शायद ये चीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन जब हम लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया, डिफरेंट आर्टिकल्स देखे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि होना चाहिए यार। उसके अलावा भी अगर हम बात करें, बहुत देर पहले हमने जो है एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है एक इंडियन ही शख्स थे जो क्या नाम लेते हैं कचरा कलेक्ट करते थे, उससे डिफरेंट काफी ज्यादा चीजें जो है वो निकालते थे, जानवरों की खुराक, खाद, फिर उसमें से गैस, पता नहीं डिफरेंट सारी चीजें वो निकाल के इस्तेमाल करते थे। बट ये कि इसके लिए मुझे लगता है ये बहुत, ऑनेस्टली बोलूं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और स्पेशली अगर मुझे लगता है गवर्नमेंट इस लेवल में इन्वॉल्व हो जाए, और जैसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इसमें भी इन्वॉल्व है, इस तरह से लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसका काम भी थोड़ा इजी हो जाता है। दूसरा जिस तरह का इसकी कैपिंग की गई है ना, एक तरह का पिकनिक पॉइंट भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पर लोग, हाँ ग्रीनरी है जिस तरह का वो बना हुआ है, ये एक पिकनिक पॉइंट बन सकता है, एक बहुत अच्छी लोकेशन ये बन सकती है। बट यार मेरे को ना एक बात नहीं समझनी है, मैं जब भी इंडिया के डिफरेंट शहर देखती हूँ ना, मेरे नजर में एक चीज आती है, हम लोग कहते हैं इंडिया इतना बड़ा, वाकई में लोग इतने ज्यादा है, बट जब आप देखते हो ना शायद, तो फिर भी आपको इतनी ज्यादा जमीन खाली नजर आती है। वो इस चीज को लेकर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग ज्यादा है, देश इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी जो आपको जगह बहुत ज्यादा नजर इसमें तो कोई आती है। शक नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर लाहौर में तो थोड़ी कम ही नजर आती है, थोड़ी नहीं, बहुत कम नजर ज्यादा आती तो है। मतलब जैसे अगर हम लोग मुंबई देख लें, आपको ग्रीनरी जरूर नजर आएगी, आप पुणे चले जाएं आपको नजर आएगी, फिर अगर दिल्ली में मुझे नहीं पता, दिल्ली में मुझे नहीं आइडिया, लेकिन लाहौर में अगर मैं बात करूँ ना, तो जो पुराना शहर है ना, यानी जिसे हम ओल्ड सिटी कहते हैं, वहाँ पे आपको वाकई ग्रीनरी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। वहाँ पे इस तरह का हिसाब है, जो दरख्त है ना उसे भी काट के जो है ना वो डेवलपमेंट के नाम पर दरख्तों को काट के वहाँ पे सड़कें बना दी गई हैं। वहाँ पर इस तरह का कर दिया गया कि क्या नाम लेते हैं, आप बस काटी जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ला के कहीं से बने बनाए पौधे वहां पे लगा देते हैं। बट आई थिंक इसमें लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट और उनकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इंडिया में देखती हूँ कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, प्रोजेक्ट होता है, वहां पर लोग जो है मतलब ज्यादा ग्रीनरी वाली अगर साइड हो तो लोग उसके लिए बोलते भी हैं, बट यहाँ पर मैं देखती हूँ कोई नहीं बोलता, किसी को कुछ पता ही नहीं है, चाहे सही है या गलत है, किसी को कुछ। हालांकि यहाँ पर कानून भी आया था कि अब जो फर्टाइल लैंड है ना, उस पे जो है आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो देखने में आता है कि बहुत सारी फर्टाइल लैंड को जो है वो पहले बंजर किया जाता है, फिर उस पे जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बना दी जाती है। बिल्कुल, और बाद में फिर हम लोग रोने बैठ जाएंगे। बट एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आपका सिटी कितना क्लीन है, या आप एज ए सिटीजन कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हम अगर अपने की बताएं तो नीचे से बहुत क्लीन है। वैसे नहीं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो एज ए सिटीजन रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं कचरा बाहर नहीं फेंकती। मैं घर में जरूर ले आऊंगी, बट मैं बाहर नहीं फेंकती। नहीं, वैसे ये बात है कि ये जो है घर जो है वो ले आती है। घर वालों को भी मना बिल्कुल। मैं कल बल्कि मेरी इसी बात पर एक बंदे से लड़ाई होने लगी थी। अब क्या है कि मेरे से आगे वो बाइक पे जा रहा था, जाते जाते उसने थूक फेंक दिया। ठीक है ना, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। पड़ गया? नहीं पड़ा, मैं बच गया, लेकिन उससे मेरी इस बात पे लड़ाई होने लगी थी, लेकिन उसने फिर सॉरी कर लिया। उसने कहा मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो ध्यान रखूंगा, तो फिर मैं चला गया। थूकना भी मुझे बहुत बुरा लगता है। और एक और चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, और वो ये कि जब हम लोग किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं, फूड कोर्ट में जाते हैं, हम लोग कभी भी खाने के बाद ना अपनी टेबल साफ नहीं करते, और ना ही उसको जो जितने भी बॉक्स वगैरह होते हैं उनको डस्टबिन में फेंकते हैं। बट आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस चीज पर मैं लोगों को देखती हूँ कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो थोड़े से केयरलेस हैं। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।